Hello everyone, I am Saisha Chadha and I have secured rank 21 in the Rajasthan Judicial Service Examination 2019. You are watching me on Delhi Knowledge Track and I will be sharing my strategy of cracking RJS by self-study. Primarily, I have cleared this exam by self-study. I have only taken the aid of institutes for mock tests and for interview guidance program. So I have done my BA LLB in the year 2019. I graduated in July 2019 from Amity Law School, Delhi, affiliated to IP University. And I started this preparation last year when the RJS notification was out. However, while I was doing BA LLB, I always used to strive for excellence for legal education, and I used to make my notes and study legal subjects thoroughly while I was doing my 5-year integrated course. So because I wanted to clear all my subjects whatsoever path I take in future. I was also very active in moot courts, alternative dispute resolution competitions and other extracurricular activities while I was in college. And it was in my final year that I decided to sit for judicial service examinations, and it was my first attempt and I have cleared the exam at this age of 23. Here I would like to mention that Rajasthan is the only state that allows an LLB graduate to sit for the preliminary examination in the final semester, and before you sit for mains, the result for preliminary examination must have been declared. So I was focused for appearing for this state once the vacancy was out. Now I will deal with the stepwise process of this examination. The judicial service examination for the state of Rajasthan is conducted in 3 stages. Number 1 being the preliminary examination, followed by the mains, which comprises of 4 papers: civil law, criminal law, Hindi essay and English essay, and finally the interview stage. So I'll deal with the stage-wise strategy, beginning with the preliminary examination. For preliminary examination, the command on bare act is extremely important. All sections must be thoroughly understood as well as retained and memorized. One may leave some sections which are not repeatedly asked in the examination, and this you can get to know by doing MCQs from any standard book, for example Ashok K. Jain or Singles, and you can solve MCQs from any of the books. I personally did not get much time for solving the MCQs because I appeared while I was also appearing for my dissertation viva in my final semester, but I advise all the aspirants to please solve MCQs as many as possible because it gives you edge over other aspirants. Secondly, as far as Rajasthan is concerned, Rajasthan में total 100 questions आते हैं, जिसमें से 70 law based questions हैं, 15 English language के questions हैं और 15 Hindi language के question हैं. तो law के लिए सबसे पहले command over bare act is very important, followed by the MCQs. For English language, I will advise all of you to please refer Wren and Martin because English grammar is asked. And for Hindi part of the preliminary examination, you can refer to a book by Raghav Prakash. It is a book which covers questions on Hindi grammar and important topics which are asked in the preliminary examination. Please don't ignore Hindi grammar because it is extremely important. It comprises 15 marks in the PT examination. Apart from that, these days, from the last 2 years, there has been a chain of cases by the Honorable Supreme Court. So I think it is very important that all these cases are diligently covered for the PT. For example, Navteej Singh Johar, Common Cause versus Union of India, they are these days repeatedly being asked in judicial service examinations, so they should be thoroughly studied. You can refer Google for referring to these cases. Apart from that, whatever state you are targeting, for example, I had first my target was Rajasthan Judicial Service Examination, so please solve 10-year MCQs, 10-year past year papers of the preliminary examination before sitting for the exam. Rajasthan has recently amended the syllabus. जिस तरीके से पहले बहुत सारे लोकल लॉज आते थे, अब वो लोकल लॉज हटा दिए गए हैं. अब क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है तो अब आसान भी है क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं वो कम हो गए हैं, लेकिन उनको अब इन डेप्थ पढ़ना होगा, चाहे वो प्रीलिम स्टेज हो या मेन स्टेज हो या इंटरव्यू स्टेज हो. So this is about preliminary examination.
and now I'll talk about the mains examination. So in Rajasthan Judicial Service there are 4 papers. Number 1 being the civil law, then criminal law, Hindi essay and English essay. I had prepared on my own. I had taken the help of institutes for test series and giving mock interview and interview guidance program. So I believe that judicial service examination you can also take coaching, because obviously it will facilitate your study and make you regular in your study. However, if you are good with your auto suggestion और आप अपने आप को बार बार सेल्फ कमांड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से स्टडी करें, एक स्ट्रिंजेंट रूटीन फॉलो खुद कर पाएँ, तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं. मैंने भी सेल्फ स्टडी से ही किया ये. और मेंस के लिए जो बुक लिस्ट मैंने फॉलो की थी, जैसे सीआरपीसी के लिए आप केलकर रेफ़र कर सकते हैं, सप्लीमेंटेड बाय ए के जैन दुक्की. फॉर सीपीसी यू कैन रेफर टू टकवानी, अगेन सप्लीमेंटेड बाय ए के जैन दुक्की. देन फॉर एविडेंस आई रेफर टू बटुकलाल, and for some topics I also refer to Dukki, but mainly I refer to Batuklal for Evidence Act. And for other subjects, for example Specific Relief Act, Limitation Act, Dukkis are very good, they are exhaustive, and I think that it is a good compilation of the subject in the Dukkis, so you can easily rely on them. One thing that is extremely important for mains is that while you are studying the books or the Dukkis, you should take out the important citations, the leading cases for every topic and every subject. And once you take out those cases, you can either look them up on Indian Qanun or you can look them up on the leading cases sections of A.K. Jain Dukki. तो जब आप A.K. Jain Dukki खोलेंगे तो आप देखेंगे कि पीछे हर टॉपिक में लास्ट में लीडिंग केसेस का एक कॉलम होता है जिसमें हर इंपॉर्टेंट केस इन डेप्थ डिटेल में कवर किया होता है. तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और आप गूगल से भी इंडियन कानून में कवर कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपके केसेस कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे. मेंस में जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग भी आते हैं राजस्थान में. तो जजमेंट राइटिंग के लिए मैंने एसैप लॉ की वीडियो परचेज की थी जिसमें दोनों के फॉर्मेट्स डील करे हुए थे और एग्जांपल्स भी दी कि किस तरीके से जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग को हमें फॉलो करना है. इसके अलावा पास्ट ईयर पेपर्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2015 या 14 से आई सपोज पहले तक ये नहीं आता था और आरपीएससी ये एग्ज़ाम लेता था, बट अब उसके बाद से राजस्थान हाईकोर्ट ये एग्ज़ाम लेता है. तो जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग अब आने लगा है और मेरे एग्ज़ाम में भी 10 मार्क्स का सिविल लॉ में जजमेंट राइटिंग आया था, 6 मार्क्स का ऑर्डर राइटिंग आया था और क्रिमिनल में 20 मार्क्स का जजमेंट राइटिंग आया था. तो 100 मार्क्स में से 20% अप्रॉक्सीमेटली दोनों पेपर्स में जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग फॉर्म करते हैं, जो कि एक बहुत ही सब्सटैंटिव पार्ट है इस एग्ज़ाम का. तो आई बिलीव दैट वन मस्ट बी वेरी थरो एंड वेरी स्ट्रिक्ट वाइल डूइंग प्रिपेयरिंग जजमेंट राइटिंग एंड ऑर्डर राइटिंग. मेंस में जब आप बुक लिस्ट पढ़ेंगे और दुक्कीज पढ़ेंगे तो आई एडवाइस ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स. अपने नोट्स बना के एक ही सोर्स से आप पढ़िए और उन्हें बार बार रिवाइज करिए. जितना आप सोर्स चेंज करेंगे उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा. तो आप एक ही सोर्स पे स्टिक करिए, उसको बार बार पढ़िए. एक बार अपने एग्जॉस्टिवली आप या तो नोट्स बना लीजिए या फिर बुक और दुक्की को कंपाइल करके वहीं पे आप लिख लीजिए. मैंने बुक में से ही पढ़ा था और एक बार आप कर लेंगे तो उसी को बार बार रिवाइज करिए. और मेंस एग्जामिनेशन में बैठने से पहले जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना फ़ायदा है क्योंकि मेंस के टाइम पे टाइम कॉन्स्ट्रेंट डेफिनेटली होगा. मेरे सारे पेपर्स ऑन टाइम ही कंप्लीट हुए हैं तो मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो पाए दें ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो और फाइनल पेपर के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो और आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाए. अब मैं एसेस की बात करूँगी. तो सबसे पहले इंग्लिश ऐसे के लिए मैंने स्पेसिफिकली कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, बट मैं करंट इवेंट्स और करंट डेवलपमेंट्स ऑफ लॉ या फिर सोशल करंट डेवलपमेंट से आई वाज थरो. एंड इसके अलावा मैंने गूगल को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया था इंग्लिश ऐसे के लिए. तो आप गूगल से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पास्ट ईयर पेपर से लिस्ट बना लीजिए और गूगल से उनके बारे में सर्च करके अपने कुछ पॉइंटर्स बना लीजिए और उसी को आप अगर करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर इंग्लिश मीडियम है तो इसके लिए आपको इजी हो जाएगा. और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी ऐसे को बिल्कुल इग्नोर मत करिए. मैंने उसके लिए राघव प्रकाश की एक बुक यूज़ करी थी जो कि हिंदी ऐसे के लिए बहुत अच्छी है. राजस्थान में 3 ऐसे आते हैं हिंदी में जिसमें जो लास्ट ऐसे होते हैं वो राजस्थान के स्टेट के बारे में ही होता है. जैसे मेरे पेपर में आया था राजस्थान की स्थापत्य विरासत. तो उसके बारे में जानने के लिए मैंने राघव प्रकाश की बुक पढ़ी थी और उसमें राजस्थान का भी स्पेसिफिक एसेस का एक अलग सेक्शन है. तो इस बुक में सारे हिंदी के एसेज हैं. इस बुक को आप एक्सटेंसिवली कर सकते हैं फॉर हिंदी एसेज फॉर राजस्थान जुडिशल सर्विस. और एसेज को आप उसमें से पढ़ भी सकते हैं या फिर प्रैक्टिस करने के लिए लिख सकते हैं.
जो भी आपका मीडियम है वो तो आप करिए ही, पर ऑपोजिट मीडियम के एसेस को भी बिल्कुल इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो आपको एज दिलाएंगे। लॉ में मोस्टली एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब अगर आप देखेंगे रैंक्स में तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, बट अगर आप ऐसे में कंपाइल करके ऐसे में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपकी रैंक भी ऊपर जाएगी। तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए। उसके बाद मैं अब इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू के लिए जो सबसे पहले जो व्हाट इज़ द की टू इंटरव्यू इज़ मॉक इंटरव्यू। एज मेनी मॉक इंटरव्यूज एज यू गिव, इट इज़ बेटर फॉर यू। यू विल गेन कॉन्फिडेंस एंड यू विल गो देयर वेरी कॉन्फिडेंटली and you will not stammer while speaking in front of the board. I had given many mock interviews, at least 5-6 mock interviews I gave, और जितना ज़्यादा मैंने mock interview दिया उतना डर भी खुलता गया और मुझे फाइनल इंटरव्यू के टाइम पे बिल्कुल डर नहीं लगा। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकती हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। 35 में से आई हैव स्कोर 29 मार्क्स, सो आई कैन ईजिली स्पीक फॉर इंटरव्यू दैट आप एक तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स से आप बिल्कुल थरो होने चाहिए। जो भी लेटेस्ट केसेस हैं, चाहे वो सोशल इवेंट्स हो, पॉलिटिकल इवेंट्स हो, आपको सब कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत क्या, ज़्यादा ही पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी वो पूछ सकते हैं। उसके लिए आप या तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए या फिर न्यूज़ एंड इवेंट्स पढ़ सकते हैं। कोई भी मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, 6 मंथ्स की ले लीजिए, जो कंपाइल्ड इशू आता है उसे पढ़िए इंटरव्यू में जाने से पहले। राजस्थान में मेंस में तो नहीं आता है करंट अफेयर्स, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ तो आपको रिवाइज़ करना ही है, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू के लिए वो ये है कि वो आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो आपका पर्सनालिटी का टेस्ट ले रहे हैं। तो आप जितना कॉन्फिडेंटली जाएंगे, जितना नीटली ड्रेस्ड जाएंगे और जितना अच्छे से आप वहाँ पे अपनी पर्सनालिटी प्रेजेंट कर पाएंगे जजेस को, उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको 1-2 लॉ के क्वेश्चंस नहीं भी आप ठीक से आंसर कर पाते हो तो भी वो इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। अगर आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो एंड आपके मैनरिज्म्स और एटिकेट्स के मार्क्स इसमें ज़रूर होते हैं, तो वो अगर अच्छे हैं तो आप इसमें ज़रूर अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये आप मॉक से भी अच्छा कर सकते हो। और अराउंड 30 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। राजस्थान में थोड़ा लंबा इंटरव्यू होता है, तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगी कि इंटरव्यू को भी बहुत सीरियसली लें, क्योंकि वो आपको रैंक दिलाने में बहुत हेल्प करता है। जो मेरी 21st रैंक आई है वो इंटरव्यू के जो मेरे मार्क्स हैं उसने बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करा है इस रैंक में। तो इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और एंड में मैं सबको यही बोलूँगी कि पढ़ाई सब करते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, बट जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑटो सजेशन। और ऑटो सजेशन से आई मीन कि आप अपने आप को बार बार सेल्फ कमांड कर पाएँ। आपका डेडिकेशन इतना ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इट सेल्फ इज़ वेरी टैक्सिंग, इट इज़ वेरी लॉन्ग। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बार बार अपने आप को ऑटो सजेशन दें, सेल्फ कमांड करें कि आपको इस चीज़ को क्लियर करना है, अपना गोल फोकस रखें और 100% दें इस एग्जामिनेशन को, तो आप ज़रूर इसको क्लियर कर पाएंगे। एंड आई विश ऑल द एस्पिरेंट्स वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।